connect with the women voters, BJP is running Shakti Vandan program at the national level. Shakti Vandan one-day workshop was organized at Harmu Patel Dharmshala. BJP state president Babulal Marandi was mainly present in this. He interacted with the women self-help groups of the state and informed them about the government schemes. Said that the goal of the country's successful Prime Minister Narendra Modi is to make 2 crore women Lakhpati Didi in 2024 and make Modi ji the Prime Minister again with the mantra Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Workshops are being organized to ensure that the benefits of these schemes reach the women directly. Shri Marandi said that to strengthen women power, Prime Minister Narendra Modi has called a special session and passed a special law giving reservation to women. He said that Prime Minister Narendra Modi has taken many ambitious plans for the country by keeping women at the center. Lajwanti Jha, the national in charge of Shakti Vandan Abhiyan and former state president of Bihar, said that in order to increase the percentage of women voters in 2024, we have to work fast in this campaign. Mrs. Jha said that under this campaign, a target has been set to reach 10 crore women across the country. State in charge of the program and Hatia MLA Naveen Jaiswal said that through this campaign, 30 lakh self-help group sisters have to be met and they have to tell about Modi ji's public welfare schemes. Addressing the workshop, State Vice President Aarti Kujur said that Mahila Morcha workers are determined to make Narendra Modi the Prime Minister again. The program was conducted by Geeta Bulmuchu and vote of thanks was given by Vinita Kumari. Neelam Yadav, Manjulata Dubey, Dr. Seema Sinha, Renuka Murmu, Sarita Pandey, Rupa Singh, Renu Tirki, Rekha Mahto, Sori Harmon, Ragini Sinha, Lakshmi Kumari, Shakuntala Devi were present in the workshop. Malti Gilwa, Rita Shetri and Mahila Morcha officials, working committee member, district in charge and coordinator were present. कि 22 जनवरी 2024 ये ऐतिहासिक दिन था और 500 साल संघर्ष के बाद रामलाला वहाँ स्थापित हुए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, चिंता करते हैं, जो देश राम का, जो अयोध्या नगरी राम की, और राम वहाँ बरसों तक टेंट में रहे, और इससे ज़्यादा पीड़ा की बात क्या हो सकती है सनातन और हिंदू के लिए। और मोदी जी के नेतृत्व में और जिस भव्यता के साथ पूरा देश राममय हो गया, और जो राम का विरोध कर रहे हैं वो जनता उनको कहीं की नहीं छोड़ेगी। वो तो समय 2024 में पता चल जाएगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो लोग वहाँ अयोध्या में निमंत्रण ठुकराए, जनता उनको ठुकरा देगी। और रहा इस जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की बात, तो 2019 के पहले बहुत सारे मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे। 5 लाख नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, हर महीने 5,000 7,000, 1932 का खतियान, सभी मामला में ये सरकार खोखली साबित हुई। झूठ का पुलिंदा एक बार लेके आ सकती है, जनता को गुमराह और ठगने का काम एक बार हो सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल देश में नहीं, विश्व में हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है उन्होंने। और आज जो नारी शक्ति वंदन योजना के तहत आप देखेंगे कि 2014 के पहले महिलाओं अगर 5,000 रुपया 10,000 की आवश्यकता होती थी तो साहूकार के पास हाथ फैलाना पड़ता था। 10% महीना पे सूद पर पैसा उनको लेना पड़ता था। अगर बच्ची का शादी है, कोई घर में बीमारी है, तो महिला लाचार हो जाती थी। महिला को स्वाभिमान के साथ जीने का अगर अधिकार दिया, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत की। उसी के तहत पूरे देश के 24 राज्य में
आप देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, महिला स्वयं सहायता समूह बना। झारखंड में भी 2,60,000 स्वयं सहायता समूह बना। आज आप गांव-गांव जाएंगे तो महिला हर गांव में सशक्त हुई है। उनको 15,000 रुपया का RF फंड अनुदान राशि पहला मिला, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का बैंक से लिंकेज हो गया। पहले हम लोग महिला के पास जाते थे, महिलाएं बोलती थी कि भैया हम लोग कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़े, पूंजी का अभाव है। आज बैंक के माध्यम से ऐसा कोई समूह नहीं है जिसको 1 लाख 2 लाख रुपया का बैंक का लिंकेज नहीं है। तो आप यही समझेंगे कि आज महिलाएं अब हाथ फैलाने वाली नहीं है, हाथ उठा के देने वाली बन गई है। अपना ट्रैक्टर लेकर, अपना ब्यूटी पार्लर लेकर, टेंट हाउस की मालकिन बन करके आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ा रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे मोदी जी का देन है। आप देखते होंगे अभी मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यही महिला समूह की दीदी, 2 करोड़ महिला समूह की दीदी करोड़पति बने। सर एक आखिरी छोटा, देखिए ये हमारे पूरे देश में 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। 1 करोड़ स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है 11 करोड़ सदस्य कम से कम। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में अब इस देश को संभाले थे, नेतृत्व ग्रहण किए थे, तो उनका पहला उद्देश्य था कि जो गरीब, किसान, महिला, युवा, उनका उत्थान के लिए कार्य करें। उन्होंने महिला आधारित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बहुत ही मजबूती के साथ ये किया। और 2023 में आज आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है, कि महिला को जिस क्षेत्र में जहां मौका मिला है वो अपनी मजबूती प्रदर्शित की है। तो उसी का परिणाम हुआ कि आज 33% का आरक्षण भी लगाया गया। तो आज जो ये कार्यक्रम है, इसमें हमारा लक्ष्य है जो हम 11 करोड़ स्वयं सहायता समूह की बहनों के पास कैसे पहुँचे, उनको जिस जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिला है, अच्छी बात है, जो वंचित है उनको उस लाभ तक हम कैसे सुनिश्चित करें, उनको लाभ पहुंचाना, और उनके साथ कैसे हमारा संपर्क बने, ये हमारा मुख्य उद्देश्य आज के कार्यक्रम का भी कुछ टारगेट है। झारखंड में 2,60,000 से ऊपर स्वयं सहायता समूह है। तो आप देख लीजिए 2,60,000 का मतलब होता है लगभग 3 करोड़ के आसपास हमारी सदस्य यहाँ पे हैं। उनके साथ हमारा संपर्क करना, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बातचीत करना, जिनको लाभ मिला है उसके साथ संपर्क स्थापित करना, जिनको नहीं मिला है उनको उस लाभ, जो वंचित है उस लाभ से, उन तक वो लाभ को पहुंचाना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। 2024 में कितना लाभ मिलेगा इस कार्यक्रम के तौर से? लोग घर घर में भी जाएंगे तो मोदी के कार्यक्रम को बताएंगे। देखिए, आप 2024 में कितना लाभ मिला ये कहने की तो आवश्यकता है नहीं। प्रभु श्री राम आ गए हैं। और महिलाएं, जब आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो 2014 में जितनी महिलाएं मत डाली थी, 2019 में उसकी प्रतिशत और अधिक थी। और आने वाले 2024 में आप देखेंगे कि उस सारे रिकॉर्ड को ये महिला मतदाता तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने महिला के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने लाया है। अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला की, तो करीब 10 करोड़ बहनों को वो लाभ मिला है। हम जनधन खाता की बात करें, हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, हम आयुष्मान भारत की बात करें, सब कुछ में महिलाओं को सबसे अधिक लाभान्वित किया है। 10.5 करोड़ बहनें हमारी जो सर पे, माथा पे घड़ा लेके पानी इतने दूरों से लाती थी, उनको घर घर जल नल के अभियान के तहत उनको वो उपलब्ध कराया गया है। तो जब बहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जितना सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बहनें भी उनके लिए सोचेगी, और ये सारे के सारे बहनें प्रधानमंत्री जी के लिए ही सोचेंगी, ये पूर्ण विश्वास है।